Welcome once again, and today we are learning something more about angles. We have studied so far right angle, straight angle, and complete angle. We have studied these types of angle. Now, today we study acute angle. Acute angle, obtuse angle, and reflex angle. We will study these three types of special angle. So far we have studied right angle, straight angle, and complete angle. We know when anybody is standing towards north and turns toward east in anti-clockwise or clockwise direction, ये तो clockwise direction हो गई, and anybody turns in anti-clockwise direction, the angle formed is what? 90 degree. Similarly, if we turn two angle, then it is a straight angle, and if we make complete turn from north to north, then angle is complete. So you can see in right angle we have got this type of figure. In straight angle we have got this type of figure, or we can say this type of figure, and in complete angle we can get this type of figure. Means in terms of movement, यहाँ पे complete revolution हो रहा है, यहाँ पे आधा revolution, आधा सर्कल का revolution हो रहा है, और यहाँ पे सर्कल के 1/4 पार्ट का revolution हो रहा है. तो acute angle means what? Acute angle means when you standing towards north, आप north की तरफ फेस करके खड़े हैं, instead of moving completely toward east, आप इसके बीच में इस एरिया, if you turn completely, then it is right angle, but you are not turning completely. आप इसके इस लाइन के यहां से मूव करना शुरू किया, लेकिन इस लाइन के बीच में कहीं रुक गए. एक्चुअली आप इस लाइन के बीच में कहीं रुक गए. सो डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? डिस्टेंस जो था वो क्या था? वो राइट एंगल से कम हो गया. ओके, सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज दैट when a measure of angle is less than 90 degree, लेकिन कुछ ना कुछ तो टर्न किया है. इट मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां पे ईस्ट पे देख रहा हूं, और मैंने यहां से अगर नॉर्थ की तरफ टर्न किया, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न किया, तो ये 90 डिग्री बनने वाला है. लेकिन मैंने बीच में टर्न किया है, तो जब मैं यहां पे ही देख रहा था, यहीं पे देख रहा था, एट दैट टाइम एंगल इज 0 डिग्री. मतलब सॉरी, वी कैन से वी हैव नॉट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री राइट नाउ. तो जब एंगल का मेजर 0 डिग्री से ज्यादा हो, क्योंकि ये एंगल तो कुछ बन रहा है, एंगल का मेजर क्या हो? जो एंगल 0 से ज्यादा हो, और राइट एंगल मतलब राइट एंगल से छोटे हों. So we can define acute angle like this. Angle whose measure is less than right angle.
right angle is called acute angle. मीन्स जब हम एक कंप्लीट टर्न ना लेके आधा टर्न लेते हैं, नॉर्थ से टर्न ना लेके बीच में ही रुक जाते हैं, या ईस्ट पे खड़े हैं यहां से नॉर्थ तरफ ना जाके इतना ही टर्न लेते हैं, तो ये एंगल जो मेजर हुआ ये कहां पे हुआ, ये उसके बीच में हुआ. ओके. सिमिलरली अगर मैं टर्न 90 डिग्री पे ना लेके थोड़ा बड़ा टर्न लिया, व्हाट मीन्स अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देखता हूं, देन इट विल बी वन राइट एंगल. बट मैं इस डायरेक्शन में ना देखकर आई एम मूविंग लिटिल बिट अहेड, बिकॉज इफ आई टर्न टू राइट एंगल कंप्लीटली, अगर मैंने टू राइट एंगल कंप्लीटली टर्न किए होते तब तो स्ट्रेट एंगल बन जाता, लेकिन ना ही मैंने ये वाला टर्न किया है ना ही मैंने ये वाला टर्न किया है. आई हैव टर्न more than right angle but less than straight angle. I have turned more than right angle and less than straight angle, or we can say less than two right angles. Then definition is angle whose measure is more than right angle, right angle, and less than a straight angle. Is called what? Obtuse angle. Is called obtuse angle. Okay. Now we will see reflex angle. So again, when we have got movement more than two straight angles, or we can more than two right angles, means मैं इधर देख रहा हूं, if I have turned this, ये टर्न हमारा 90 डिग्री के लिए हो गया, ये टर्न हमारा स्ट्रेट एंगल के लिए हो गया, लेकिन मैंने जब टर्न शुरू किया, ना ही मैं यहां पे रुका ना ही मैं यहां रुका, आई टर्न मोर देन स्ट्रेट एंगल, आई टर्न मोर देन टू राइट एंगल, आई टर्न मोर देन टू राइट एंगल, देन द एंगल फॉर्म्ड इज लाइक दिस, angle formed is like this. So we can say angle whose measure is more than two right angle और a straight angle, एक स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है, and less than a complete angle. Complete angle is called what? Reflex angle. उसको हम लोग बोलेंगे reflex angle. Okay, now I will make the diagram once again. ये हमारे पास राइट एंगल का डायग्राम है.
ओके, ये राइट एंगल का डायग्राम है, मैं इसको भी मिटाता हूं. नाउ आई विल मेक डायग्राम फॉर ईच एंड एवरी एंगल. राइट एंगल मीन्स this is right angle. When we turn two right angle like this, one right angle and second right angle from here to here, then what is the distance? This is a straight angle. And now similarly for complete angle we have got this direction, and from this point we move this, this, this and this, means complete circle. यहाँ पे देख रहे हैं, that's why I made the circle, that's why I made the complete circle. But right angle is denoted by a rectangle. Okay, so we can say ये right angle है, ये straight angle है, ये complete angle है, एक right angle, दो right angle और 4 right angle. Now अब हम बात करेंगे acute angle की. Acute angle means हम यहाँ पे देख रहे हैं, instead of taking complete turn, we turn in between. Acute angle. We can have also the diagram in any direction, like ये डायरेक्शन ये हो गया 90 डिग्री का, but we have turn. अगर मैं इधर से बात करूं, देन ये भी एक्यूट एंगल बनेगा, ये भी एक्यूट एंगल बनेगा. किसी भी डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बन सकता है. इट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल, ये भी एक एक्यूट एंगल बनेगा. ओके, सो यू कैन हैव अ एक्यूट एंगल एनीवेयर, एंड द सिंपल डायग्राम ऑफ एक्यूट एंगल इज like this, or we can say like this. Now obtuse angle की बात करेंगे तो हम, हमारे पास एक डायरेक्शन है, ये हो गया 90 डिग्री का, बट हमने ये मूवमेंट ना करके इससे ज्यादा मूवमेंट की और ये मूवमेंट की है. अगेन वी कैन से, अगर मेरे पास ये डायरेक्शन है, मैंने 90 डिग्री की मूवमेंट ना करके ये मूवमेंट की है. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. व्हाट? ऑब्ट्यूज एंगल. नंबर 2 के एग्जांपल है ऑब्ट्यूज एंगल. सो वी कैन से एनी एंगल लाइक दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, या किसी भी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल. ये डायग्राम है मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल की. ओके, नाउ थर्ड इज देयर रिफ्लेक्स एंगल. अगर मैं इस तरफ मूवमेंट कर रहा हूं और अगर मैं यहां तक आता हूं तो एक स्ट्रेट एंगल होता है, लेकिन आई मूव्ड लिटिल बिट मोर देन दैट. This is what? Reflex angle. Or we can say another example. Reflex angle. Because how can you say that one right angle, second right angle, third right angle और फिर उससे ज्यादा? So these are the example of what? Reflex angle. Now अब एक ही डायग्राम में हम एक ही डायग्राम की बात करेंगे. Let us have a glance. We have got one line, and if we make this line, this is what? Right angle. This is what? Right angle. Now this is what? Acute angle. This is what? Acute angle. At the same point, if we extend this line to this side,
this side to this side, then angle formed by this line is obtuse angle. And if we have got any, ये obtuse angle हो गया, and if we measure this angle, then this is what? Which angle? This angle. This is reflex angle. In the same way, when leaving this acute angle, we measure this complete angle. Means ये हमारा acute angle था, इसको ना मेजर करके जब हमने ये मेजर किया, these are the example of what? Reflex angle. Okay, तो एक ही डायग्राम में मैंने सारे डायग्राम आपको क्लियर कर दिए हैं. Right angle, straight angle and complete angle, everything. Let us move to our exercise. You can see question at the screen. तो अगर मैं in terms of पहला क्वेश्चन में देखता हूँ और मैं अगर रिवोल्यूशन की बात करता हूँ, रिवोल्यूशन मीन्स a complete circle. तो अगर मैं एक राइट एंगल की बात करता हूँ, एक स्ट्रेट एंगल की बात करता हूँ और एक कंप्लीट एंगल की बात करता हूँ, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. सो इन राइट एंगल we turn only this. In right angle we turn only what difference? We turn इन राइट, अगर मैं बात करता हूं राइट एंगल की, तो आप देखना, इन राइट एंगल वी टर्न ओनली दिस डिस्टेंस, देन दिस इज व्हाट. अगर मैं इस सर्किल के हिसाब से बात करता हूं तो 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन, एक चक्कर का 1/4. अच्छा, सिमिलरली जब मैं स्ट्रेट एंगल की बात करता हूं, देन व्हाट? 2 राइट एंगल मीन्स हाफ रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन. और एक कंप्लीट एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल एंड ये एंगल मीन्स 4 राइट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल एंड 1 रिवोल्यूशन. ओके, नाउ एक्यूट एंगल की बात करता हूं. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट? लेस देन किससे लेस देन? एक राइट एंगल से, मतलब लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन. 1/4 रिवोल्यूशन. ओके, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करता हूं तो मोर देन व्हाट? मोर देन किससे? मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन straight angle. What does it mean? It means मैं यहां लिख रहा हूं, it means आधे रिवोल्यूशन से ज्यादा एंड 1/4 रिवोल्यूशन से ज्यादा और आधे रिवोल्यूशन से कम. तुम गड़बड़ हो गया लिखने में, स्पेस बना लेते हैं पहले. हाँ, इसका मतलब क्या है? 1/4 रिवोल्यूशन से ज्यादा और आधे रिवोल्यूशन से कम. ओके, नाउ मैं अब बात करता हूं किसकी? रिफ्लेक्स एंगल की. यहां पे लिख लेते हैं
रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल की, तो व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, दो राइट एंगल से ज्यादा, मतलब मोर देन टू राइट एंगल और लेस देन फोर राइट एंगल. इट मीन्स मोर देन हाफ रिवोल्यूशन एंड लेस देन कंप्लीट रिवोल्यूशन. इसको रिवोल्यूशन कर लेना, ठीक है. ओके, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन at your screen, a straight angle, so you can match. मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ. Revolution means a complete circle. अच्छा, first what, a straight angle, and straight angle is equal to half revolution. Then you can say one is a half revolution. कहाँ पर है, C में है, फर्स्ट का C. ओके. नाउ सेकेंड राइट एंगल, यू नो द 1/4 रिवोल्यूशन. 1/4 रिवोल्यूशन कहाँ पर है, 1/4 रिवोल्यूशन इज D. 1/4 रिवोल्यूशन इज D. नाउ थर्ड वन इज acute angle. Less than 1/4 revolution, where it is A. फोर्थ की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, आधे से ज्यादा, नहीं, 1/4 से ज्यादा, 1/4 से ज्यादा, बिटवीन 1/4 एंड लेस देन हाफ. कौन सा है ये मिलेगा आपको E में, वेयर E में. और फिफ्थ वाला क्या बचा हमारे पास, फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ हमारा, एनीबॉडी? रिफ्लेक्स एंगल मींस मोर देन व्हाट, मोर देन हाफ लिखा था ना आपके पास, मोर देन हाफ. तो मोर देन हाफ किसमें है, मोर देन हाफ इज B. विद दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक ऑप्शन छूट गया है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स नथिंग बट अ कंप्लीट एंगल. You can see question second at the screen. And this is about recognizing angles. So first angle you can say is acute angle. First angle is what? You can see question at the screen. First angle is second ka A, B, C, D and E and F. So first angle you can see, I told you angle whose measure is less than a right angle is called acute angle. Now B part, you know, when you observe the figure you get that this angle is obtuse angle because the measure is more than 90 degree, more than a right angle. C is right angle. And D you can say reflex angle. Now again E, straight angle. And last one you again see, ये फिगर दे रखा है, इन फिगर जिसमें हमको केवल इसके बारे में बताना है. बाकी एंगल तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन हमको इस एंगल और इस एंगल के बारे में बताना है. These angle are acute angle. With this our exercise is come to an end.
Hope you have enjoyed the session. See you in the next video.